We have covered advance payment. Okay. Advance payment to vendor. And when we make the advance payment to vendor, after that we receive the invoice and then we clear them. There are two ways to clear. One is directly we will clear F-44, or we have another way. We will transfer advance payment to normal payment, then we will clear. Okay, same thing you will be doing in the customer also, but transaction code would be different, and that time you are receiving the advance payment. For the vendor, you are making the advance payment, but for the customer, you will receive the advance payment. Okay. Okay, so we have Santosh also now. Let's start. Good morning, everyone. I'm so sorry. No issues. Okay, let me start. Good morning, Santosh. Hello, sir. Good morning. Did we cover reversal documents? I think no. No. No, sir. Okay, yesterday we checked only advance payment and clearing of them, and then you know how to put post credit memo. We need to use the FB65 transaction code. So for that also, let's post one of the transaction code for credit memo. So if you use FB60, it will allow you to post vendor invoice. It is, you can see here, it is vendor invoice. And here it is coming debit in the vendor invoice. If you change it to credit memo, you can post credit memo from the same transaction code, but then you need to decide my expense would be credit. So instead of the same transaction code, go to another transaction code FB65. It will show you a credit memo, and here it is automatically credit the expense. Okay, let's do one entry. Okay, how to resolve this error? How we can resolve this below error? Tim, OBS 7. Correct. And in this document, we are getting the document type KG. So we will be checking the KG document type. This one, vendor credit memo. Double click on this one, 17. Go to this one, enter your company code, interval, and enter the number range. Okay, now error will disappear. Now error is gone. Now simulate it. Now see, expense is getting credit because we are doing credit memo. Now entry would be reverse. Suppose you you got the invoice for 1,000, and out of 1,000 you found that there are some materials are defective. So you are going to return that material to vendor that this material is defective. So we want to return, and suppose that amount would be 200. So then you would be entering the 200 of credit memo in the system, so that at the end you will be making the payment of 800 to vendor. Let me explain you in the Excel. So you receive the invoice, vendor invoice 1,000. And now you got to know that there are some material which are in quantity, you can say 10 amount. And now two quantity is defective. Okay, now you will be returning this two quantity. Remaining amount quantity would be 8. Then it would be 800, which you need to make a payment.
But for that, you need to enter the credit memo for this two quantity, which is now 200. So you are going to post the credit memo. सर ये एक डाउट है यहाँ पे, ये जो क्रेडिट मेमो हम इशू नहीं करेंगे, राइट? इट विल रिसीव फ्रॉम द वेंडर, इट्स इनकमिंग क्रेडिट मेमो. You will ask them that there is some material is defective. We are going to return. Please raise a credit memo for 200 rupees to us. गॉट इट. एंड अगर वो डिले करते हैं, क्या हम एक डेबिट मेमो इशू कर सकते हैं? नहीं नहीं, वेंडर के केस में नहीं, आप कस्टमर के केस में करते हैं हम तो. ओके. Vendor will give us the credit memo, and we will put the entry in the system that this is the defective material which we have returned, and now in total we need to make a payment of 800, not 1000. Okay, so that is why we have a transaction code FB65 for putting the credit memo. And for that, you can see the entry here. Expense is getting credit, not debit, and vendor is getting debit. So now save it. And now you can display the document. This is debit, vendor line item, expense account is credit. Now click on cap. And then here you can see FB65 posted by, entry on, document date, posting date, invoice number, and the document type. Okay, so this way you can post the credit memo whenever you need. Any doubt? No. How to clear the credit memo? Like you understood in the Excel, how to clear that? Let's do one thing. Firstly, I post invoice also, FB60. And suppose I say 10,000, or maybe I say 15,000. 15,000 invoice I am going to post it. Now go in the vendor report. And I'm taking the today's data. I will enter the today's date. Now we have two line item. One is invoice, second one is credit memo. So we need to make a payment of 5124. So if I will post manual entry, let's say if you want that, I will be posting the manual entry. And this would be vendor account debit. And this would be 5124. And bank would be credit. सर कौन सा टी कोड में गए? FD02. FD02, FD43 में जाओ, FD02 में जाओ, और भी जितने ट्रांजेक्शन कोड मैनुअल के किसी में भी जाके कर सकते हो. FD22 भी. हाँ हाँ, वहां से भी कर सकते हो. वो कस्टमर का दिखाएगा आपको, बाकी वहां से भी कर सकते हो. अच्छा, हमने डेबिट क्रेडिट गलत लिया था, तो वी नीड टू एंटर अगेन. 31 क्रेडिट के लिए होता है, तो हमें 21 लेना होगा. लेट्स सी. डेबिट. नाउ यहाँ पे हम बैंक की एंट्री के लिए क्रेडिट करेंगे. ठीक है, अभी देखो एंट्री हो रही है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक इज मेकिंग द पेमेंट टू वेंडर, करेक्ट. जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक और लाइन आइटम आ जाएगी. चलो मैं एक पूरा सिनेरियो, दो सिनेरियो बनते हैं, दोनों सिनेरियो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ. ओके, सो एज ऑफ नाउ वी हैव इनवॉइस एंड वी हैव क्रेडिट मेमो, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट ऑफ पेंडिंग अमाउंट. ओके, नाउ रिफ्रेश इट. Now it is 0, but there are 3 documents are open. You have made the payment, but you have put the payment manually. That is why every document is open. So for that, now you need to run F-44. ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, now take the document number
These are the all document number. Now in this transaction code F-44, you need to enter vendor and you can click on document and then enter the document which you want to clear. So I want to clear all three documents because this is invoice, this is payment, and this is credit memo. So in total 0, and all these documents are linked to each other. So I will be clearing all of them. So I will be picking the document number, entering here, and then click on process open item. Now it is getting 0. Now simulate it and then simulate it again. Now tell me why I'm not getting any entry here. When I'm clearing the documents, I'm not getting any entry, but documents will be cleared. Any clue you can think why we are not getting any entry here? तो स्पेशल जेल तो नहीं था। नहीं, ये आपका डॉक्यूमेंट्स हैं. This is invoice, this is payment, this is credit memo. After all these documents, it is getting 0. And now you are going to clear them. So think this word. You are going to clear them. So if you are going to clear them, you will not have any entry. System will clear all these transactions. System is not going to post any entry. System will clear all the transaction because it is getting 0. You are clearing them. You are not putting any entry. Okay. So now save it. We will have new document number 4 ending with 2, but we will not have any entry. Let me show you that also. So I'm opening this document number 4 ending with 2. So those documents we didn't post, right? Just we have parked and clear it, right? Sorry. Can you come again? Which those 3 entry you have made it, right? So we have just cleared it. We didn't post it that those. Correct. So those 3 entries we are going to clear, and clearing document number is this one 4 ending with 2, but there is no entry because this document is only clearing document number. We are not going to post any entry. This is manual clearing. Okay, that is why we do not have any entry in the clearing document number. Now, if I will refresh, all 3 documents would be clear and clearing document number is this one. Yeah. Now I will run another process. Let me post FB60 again. $20,000. We received the invoice for 20,000, and out of 20,000, we got to know that some quantity is defective. So we will post some quantity amount also. So suppose I say 3 quantity is defective, the 3,000 amount I'm going to post as a credit memo. Okay, save it. Now go back again in the report. Now you have 2 documents open which we just posted. Okay. This is invoice, this is credit memo. So in total, I need to make a payment of 17,000. Now I will not make manual payment. I will make manual payment, but I will not make the payment through F-02, which is completely a manual entry. Now I will use the transaction code F-53, which will clear these documents automatically. We don't need to clear separately through F-44. So running the F-53 transaction code will make the payment as well as clear both the transactions also. Okay, let's see. So here bank account, and I'm going to make a payment of 17,000. Vendor account, and then I can enter the document. Okay, so I'm going to take these 2 documents, this one. Now this time system will make the payment as well as clear the documents also. These 2 documents are coming. No need to clear once again, sir. Okay. Yes, we don't need to clear.
And this time we will have entry also because we are making the payment. And while making the payment, system is clearing the debit memo and credit memo both. Like invoice and credit memo both, it is going to clear because we are going to make a payment of 17,000 and we are selecting two items which total is 17,000. And now simulate it, and now simulate it again. And now you can see vendor is going to get the debit of 17,000. Bank is making the payment of 17,000. And now save it. And another document number is 15 ending with 2. This is the payment document as well as clearing document. So in these documents, in these two documents, we will have clearing document here, 15 ending with 2. And then we will have another document, 15 ending with 2, which is payment document. Let's refresh it. This is your clearing document number. Yeah. This one. And this is the payment document number, KZ. And now open this document, KZ, 17,000. And now see the entry. Vendor debit, bank credit. So there is entry also, and that is clearing also. So when you run F-53 to make the payment to vendor, system will make the payment as well as clear the document also. But when you are posting through F-02, completely a manual transaction code, then it will only post the payment entry, it will not clear. For that, you need to run F-44 transaction. Clear? Yes, no, maybe. Yes, yes. Okay, let's move forward. So as we are checking report, this one, which is vendor report, which is line item report, vendor line item. So you can see the data line by line. But if you want to see this total month wise, how much amount I have every month, then you have a transaction code FK10N, which is this one, FK10N. You need to enter the vendor number, company code, and fiscal year. So vendor number, company code, fiscal year, executed. So you will get the data monthly, month-wise on debit credit. So on 11th month, I have posted the credit amount of 88,644. And in the March period, I have posted the amount of 47,000 debit, 47,000 credit. And total balance pending is 88,000 like that. So you can refer it here also. FBL1N. So what is my open balance? Great. So my open balance is 88,644.87. It is also same. Now suppose I want to check data for 11th month till February. I say, what is my amount was open? This was. And now suppose I only want to see the data for this March period. So all the documents for March is cleared. This is FK10N, right? This is FK10. That is FBL3N, FBL1N, where you can see line by line data. Here you can see month-wise data. Right. Yes, Actually, FBL1N version. Sorry. Okay. Go ahead, Kodison. Yeah, this is FK10 and okay, this T code sir I am asking that when Yeah. month This wise, is yeah. Okay. this is FK10N. This is month wise balance that we are able to see here. Yeah, month-wise balance you can see. You can see special GL transaction also. How many special GL transaction you had? Like FAGLB03, sir, like Which one? GL balance we will check, right? FAGLB03. Yeah, that is also GL report. FAGL 03. Yeah. FAGLB03. FAGLL03 also there. So this is GL report. This report looks like
FBL 3N. This is not vendor report. Over there, you can see above GL account line item display GL view. It is more enhanced report for FBL 3N. Correct. Because here you can see only a GL account line item display Line item display. entry view. But if you will run this FAGLL 03, it will show you data with GL view. Ah, let's see that. You have offsetting account also. What is your GL for this expense, for this entry? But in FBL 1N, you cannot see what is my expense GL against the entry. So for this entry, sorry. For this entry, you have debit and credit. Debit is expense, vendor is credit. So you are running this expense report in this domestic vendor. This is my reconciliation account. And in this, you have offsetting account, which is expense account is this one. You have used this expense account. Vendor is this one, which is domestic vendor. This is not vendor, this is vendor reconciliation account. So suppose this bank payment, bank transaction. So one line would be bank, second line item would be vendor or customer. So this time, this is KZ, this is vendor line item. And let's see what is the number for the offsetting account. So this vendor we have used for making the payment from this bank. Okay, this is more information you will get it for the GL report. So can you change the layout of this report? For example, on the top you have domestic vendor, in the below you have HDFC bank account. So instead of having separate tables, one table having one column that it will call out the transactions for each of the vendors. So great. So now I have entered specific GL to have the report. So it is Right, showing sir. this one. If I don't enter anything, system will show the report for all the GLs in my company code. Okay. Uh, If you want to filter or maybe sort or maybe sum, then you can click on this one. Suppose you are saying, I want to subtotal by my vendor or by my GL, then select this one and then click on this display sum. So display sum is already done. Then we need to click on subtotal. नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ यू हैव टू लाइक फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वेंडर जोमेटो यू हैव एंड बिलो भी बैंक। अच्छा बिलो बैंक है क्या? हाँ मतलब सभी जीएल आ गया। हाँ समय मतलब अंडरस्टूड। जितने भी आपके जीएल क्रिएट हुए जिसमें ट्रांजैक्शन है उनके सबका आ गया बिकॉज वी डिड नॉट एंटर इवन अ सिंगल जीएल हेयर। नहीं नहीं सर मैं समझ रहा हूँ एक बार जाइए ना वहाँ पे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये देखिए ऊपर वेंडर है नीचे आपका एचडीएफसी बैंक है राइट। तो ये दो टेबल मुझे नहीं चाहिए मुझे एक टेबल एक लाइन में चाहिए जहाँ पे विल हैव ए कॉलम दैट विल टॉक अबाउट नहीं नहीं द जीएल नहीं आएगा, अकाउंट और द वेंडर नंबर नहीं आएगा। ये डिटेल्स। आपको ऐसे ही आएगा कि आपने मल्टीपल जीएल्स का डेटा रन किया है। वो पहला जीएल ये है, सेकंड जीएल दिस वन, थर्ड जीएल दिस वन, फोर्थ जीएल इज दिस वन। सो आपको ऐसे ही आएगा, इसको चेंज करने का नहीं है कुछ भी। इसको फिर एक्सेल में डाउनलोड करके फिर आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सी दैट। हाँ 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 हाँ, लेट्स एक्सपोर्ट इन एक्सेल। वेट, यहाँ पे सब कुछ आएगा राइट। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द करेंसी यूज्ड व्हाट इज द टैक्स अमाउंट जो प्रॉफिट जो आपको सेंटर कॉस्ट लेआउट ऊपर दिख सेंटर। रहा है, नहीं, जो जो आपको लेआउट ऊपर दिख रहा है वो आएगा। ओके आपको अगर बाकी चीजें भी चाहिए तो आपको लेआउट में डालनी पड़ेगी। अगर लेआउट में नहीं है तो डेवलपर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, लेआउट में नहीं है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इज इट पॉसिबल टू ऐड बाय
फंक्शनल कंसल्टेंट और नोट। अगर नहीं हो सकता फंक्शनल कंसल्टेंट के थ्रू, देन यू विल कॉन्टेक्ट टू डेवलपर कि हमें एक नई फील्ड ऐड करनी है इस वाली रिपोर्ट में। हम्म, और कभी भी स्टैंडर्ड रिपोर्ट को नहीं छेड़ना, हमेशा स्टैंडर्ड रिपोर्ट की कॉपी करनी है और उसके बाद उसमें चीज़ें ऐड करनी। तो ये आपको एक्सेल में ऐसे आएगा, got it. ये मेरा अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये मेरी ओपन आइटम है, ये मेरी एक्सपेंस का जीएल है। ऐसे आएगा आपको डेटा। फिर वो टिक वाला क्या है? टिक एंड रेड वाला ये ओपन आइटम्स। ये रेड वाला ओपन आइटम, ये बैलेंस शीट आइटम होगा आपका। ये एक्सपेंस का जीएल है। टिक टिक वाला क्या है एक्सपेंसेस के लिए? ये है मतलब एक्सपेंस का जीएल है, इसको क्लियर नहीं करना। हम्म, हाँ दो बराबर। दो टाइप के जीएल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा टिक आएगा, बैलेंस शीट में रेड आएगा या ग्रीन आएगा, बॉक्स में या फिर सर्कल में। गॉट इट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सर आते हैं। हाँ सर मुझे और एक बात पूछना है, जो हमने जो वेंडर क्रिएट किए राइट, हाँ तो मुझे एक रिपोर्ट मुझे डाउनलोड करना है कि फॉर एग्जांपल आज टीम ने से 10 वेंडर उन्होंने सेटअप किए हैं। हाँ। मुझे एक रिपोर्ट डाउनलोड करना है कि व्हाट आर दोज वेंडर्स दे हैव सेटअप, व्हाट आर देयर बैंक अकाउंट नंबर, व्हाट इज द वेंडर नंबर, सो देयर एड्रेस, देयर टैक्स कोड, एवरीथिंग आई वांट टू सी इन वन रिपोर्ट। रिपोर्ट एक में तो कभी नहीं मिलेगा आपको, आपको डिफरेंट टेबल रन करनी पड़ेंगी। सपोज आई से FBL, पहले B1 में जाते हैं, LF B1 में। एंटर योर कंपनी कोड, यहाँ पे एग्जीक्यूट, देन यू विल गेट हाउ मेनी वेंडर्स आई हैव, 3 वेंडर्स आई हैव। अगर आपको जो डेटा इस वाली टेबल से चाहिए, यू विल एक्सट्रैक्ट इन एक्सेल, वो आपको इस टेबल से मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि इस टेबल में सारा डेटा नहीं है, देन कॉपी दिस वन, गो टू अनदर टेबल LF A1। यहाँ पे यू डू नॉट हैव ऑप्शन टू एंटर कंपनी कोड, सो यू नीड टू एंटर दिस वेंडर, एंटर। एंड फॉर ऑल दिस वेंडर, दिस इज माई अनदर डेटा विच यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है। अब आप कह रहे हो इसमें भी सारा डेटा नहीं है, देन यू नीड टू गो टू अनदर टेबल विच इज LFBW। देन हेयर यू नीड टू एंटर कंपनी कोड, हेयर यू कैन एंटर वेंडर। यहाँ पे आपको विद होल्डिंग टैक्स का डेटा आएगा, ये डेटा जो है विद होल्डिंग टैक्स के लिए है। अभी तो हमने कुछ करा नहीं है विद होल्डिंग टैक्स का, तो सारा कुछ ब्लैंक आएगा, अभी कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको मल्टीपल टेबल्स में जाके एक्सेल में लाना पड़ेगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही रिपोर्ट में डेटा मिल जाए, तो एक ट्रांजैक्शन कोड है SC16H। मतलब SC16N की जगह SC16H यूज करोगे, तो आपको ये 3 टेबल का डेटा एक रिपोर्ट में आ जाएगा। बट वो आपको बनाना आना चाहिए, हाउ टू मर्ज ऑल दीज 3 टेबल्स। वो कैसे मर्ज करते हैं इस ट्रांजेक्शन कोड में, वो हम बाद में सीखेंगे। हम्म। बट रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, यू ओनली नीड टू रन द टेबल्स। लेकिन दूसरा चैलेंज ये होता है सर कि आपको जो एंड यूजर होते हैं ना, उनके पास ये टेबल का एक्सेस नहीं रहता है, तो दे विल हैव द टी कोड एक्सेस बट नॉट द टेबल एक्सेस। बट एंड यूजर को ये कभी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी कि आज मेरे कितने वेंडर बने। हाँ सर, उनका जो मैनेजर रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे टीम में कितने सारे अरे वेंडर, मैनेजर को पता, फिर मैनेजर के पास एक्सेस होगा, टेबल का। टेबल का मैनेजर के पास एक्सेस होगा। मुझे थोड़ा सा क्लाइंट देता नहीं है वो नहीं नहीं, वो टेबल तो का देना एक्सेस। पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। अगर अभी मुझे आप कहो कि मेरे को बताओ कि ये तीनों वेंडर जो हमारे पास आ रहे हैं, ये कब क्रिएट हुए हैं, मैं टेबल में ही जाऊंगा। मेरे पास ऐसा कोई और ट्रांजैक्शन कोड नहीं है जिससे मैं पता कर लूँ। फिर भी एक BP ट्रांजैक्शन कोड जिसमें हम जाते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको एंटर किया, Yeah. यहाँ पे आपके पास बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको ये नहीं आ रहा क्रिएटेड कब हुआ है। अगर मैं इसको रन करके R&D करके निकाल भी लूंगा कब क्रिएट हुआ है, वो तो निकल जाएगा। बट वो फिर 1 बाय 1 निकलेगा, उसको तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे चलते हैं, ये चेंज हिस्ट्री में, स्टेटस चेंज में देखते हैं, कुछ नहीं, नहीं है। वो नहीं, काम नहीं करेगा। सर और एक मारिए ना, MKVZ मारिए, MKVZ। एक सेकेंड, MKVZ। नहीं, यहाँ से भी नहीं पता चलेगा आपको कुछ। ये तो आपको पता चलेगा कौन कौन से वेंडर मेरे परचेजिंग में हैं।
जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको ऊपर ये आ जाएगा कि ये वाला वेंडर है मेरा, इसका ये एड्रेस है, परचेजिंग का डेटा आएगा। देखिए हर वेंडर तो परचेज में ऐड तो करना ही है, बिकॉज विदाउट द नहीं मटेरियल नहीं नहीं डिटेल्स, नहीं नहीं, इट इज पीओ, नॉट जीआरआईआर। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ऐड एवरी वेंडर टू परचेजिंग, ये मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रहा है? आर यू गेटिंग रिकंसिलिएशन अकाउंट हेयर? नो नो। खाली परचेजिंग का डेटा आएगा यहाँ पे। नहीं सर, और और एक बात ये है कि अगर परचेजिंग, हर मैं क्या बोलता हूँ, हर वेंडर परचेजिंग में डालना है, क्योंकि उनका पीओ, उनका मटेरियल सेटअप, जो भी एमएम का काम होता है, अगर वो सेटअप नहीं होगा तो फिर एंटायर P2P साइकिल खत्म खत्म कंप्लीट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका वेंडर सो P2P साइकिल के थ्रू जाएगा, देन यू हैव टू ऐड वेंडर टू योर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, अगर ये नॉन पीओ है, सर्विस सेक्टर वेंडर है, देन नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड द हाँ परचेजिंग हाँ, डिपार्टमेंट। मतलब ये डिसीजन कंपनी का होगा कि ये वाले वेंडर से हम P2P साइकिल के थ्रू परचेज करते हैं। और कहीं कहीं कंपनी में तो होता ही ऐसे है कि उनको हमेशा पीओ के थ्रू ही करना होता रूट, वो कभी डायरेक्ट पीओ डायरेक्ट एफआई एंट्री करते ही नहीं है। गॉट इट। वो बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे ही होता है, वो कहते हैं चाहे उस वेंडर के पास परचेजिंग की हमें इंफॉर्मेशन है या नहीं है, बट वी विल क्रिएट द पीओ फॉर आर आर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो वो भी होता है, बट डिपेंड करता है कि अगर आपको पीओ के थ्रू जाना है, देन यू हैव टू ऐड वेंडर टू परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो जरूरत नहीं है। बट ये जो आपने बताया रिपोर्ट MVKZ, इट इज ओनली फॉर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दिस वेंडर इज असाइंड टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और उसका ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, एड्रेस एड्रेस। गॉट बट इट। इट इज नॉट क्लियर हु क्रिएटेड, व्हेन क्रिएटेड, व्हाट इज माय रिकंसिलिएशन अकाउंट, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है आपके पास। सर और एक डालिए, XK03, मैं कल ये नेट में थोड़ा दिख रहा था। 03 is obsolete in S/4HANA. XK03 है। It is obsolete. Once you run this transaction code, it will take you to BP transaction code. हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाला वेंडर, जी ये सर। ये पुरानी स्क्रीन है ECC की। मैं हाँ, इस पे एंटर करने के बाद ये मुझे BP पे ले जाएगा। एक सेकेंड। सप्लाई निकाल दीजिए, बिकॉज यू हैव द कंपनी कोड, सो लेट इट कम द कंपनी कोड ओनली। और एड्रेस एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम ये लेते हैं। जी। देखो ये ले जाएगा आपको BP पे। हम्म। और जो पहले ECC में था वो उसकी स्क्रीन अलग थी। जब मैं XK03 करता था उसकी स्क्रीन अलग हो जाती थी। बट अभी XK03 करने के बाद ये स्क्रीन तो ECC की है, बट जब हम्म। मैं इसको एंटर करता हूँ तो S/4HANA का BP पे ले जाता है वो। और नीचे देखो आपको ट्रांजेक्शन भी लिखी हुई आ रही है, रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजेक्शन BP एज ट्रांजेक्शन XK03 इज ऑब्सोलीट। हम्म। वहां पे भी आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। वो ट्रांजेक्शन कोड इज सेम एज BP ट्रांजेक्शन कोड, इट इज फॉर गॉट इट। इन द मास्टर डेटा। Got it. And MKVZ will not give any non-PO based or service invoice vendors. It will give only the purchasing department vendors. हाँ हाँ हाँ, ओनली परचेजिंग वेंडर डिपार्टमेंट, ओ PO, सॉरी वेंडर्स। PO based vendors. हाँ हाँ, Okay. ठीक है। ठीक है, no problem. Now let's check further what we have. Now we need to check how to reverse documents and why we need to reverse the documents. Firstly, let's understand in Excel. Suppose you are posting the vendor invoice, vendor or maybe customer invoice. Invoice number, document number is, suppose this is the document number. Amount is suppose 13,000. And now you are saying by mistake I have entered 13,000 instead of 1,30,000. So you have entered one less zero in the document. So there are two ways. First one is you will reverse this document. Or second way is you will do further entry, which is 1,30,000 minus this. Remaining you will enter this amount. So total is 1,30,000. This is first approach. Second approach says that you are not going to post the remaining amount. You will reverse this document. And suppose document number would be like that.
and then you will post vendor customer invoice again with the correct amount, like that. Okay, are you able to understand the concept why we would need to reverse the document? Sir, could you please repeat? I'm not able to understand. ठीक है, suppose you need to enter the invoice for vendor or maybe for customer. Written 1,30,000, but by mistake you have entered 13,000. So it was mistake that you did not enter the complete amount. So there is one way you will reverse the transaction which is 13,000. Then you will reverse, and then you will have a new document for the reversal document. And then you will enter the invoice again with the correct amount. This is the first scenario. Hmm. Second scenario would be you will enter the remaining amount. You will not reverse this document. You will enter the remaining amount, which is 1,30,000 minus amount which you have already entered. So remaining amount invoice you will enter for 1,17,000. There are two ways. So, Okay. but we are going to understand how to reverse the document so that we will enter the correct amount like that. We will reverse the document for 13,000 and then we will enter the correct document with correct amount. And for that, we need to run the transaction code FP08. Sir, what is the best practice? Is it to reverse and the process the correct entry, or to Reverse. reverse? Okay. Because you have one invoice, and for one invoice you are putting two lines, two entry. Definitely you would be putting the same invoice number. But if your system says that same invoice number they will not accept, then you need to enter the different invoice number. So that is not good practice. Best practice, reverse the document, enter the invoice correctly. If we have did मतलब wrong invoices for two entries, then how we solve it? मतलब if we post invoice for 13,000, then we again posted different entries like 26,000. Then we uh, uh, reverse and we reverse the two entries at the same time. हाँ, जितनी एंट्री गलत हुई है दोज यू नीड टू रिवर्स. मतलब अब ये डिसाइड बिजनेस को करना है कि कौन सी एंट्री गलत है या नहीं है, क्योंकि उनके पास इनवॉइस आएगा, दे विल पोस्ट द एंट्री, दे विल डिसाइड कि गलत है कि नहीं. अगर गलत है तो दे नीड टू रिवर्स. बट कंसल्टेंट को हर चीज पता होनी चाहिए, कैसे यूज होती है, उसका इम्पैक्ट क्या है, बिजनेस सिनेरियो क्या हो सकता है. आपको रिवर्स नहीं करनी है, बट आप टेस्टिंग कर रहे होगे डेवलपमेंट सिस्टम में, तो आपको भी रिवर्सल करनी पड़ सकती है. बट प्रोडक्शन में आप रिवर्स कभी नहीं करोगे. प्रोडक्शन विल बी ओनली फॉर यूजर्स. फॉर यू प्रोडक्शन इज लाइक अ प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन. आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हो प्रोडक्शन में. You will be doing all this testing in quality or maybe in development only. Understood? ठीक है, क्लियर है. So best practice is we reverse the document. 13,000 is minus 13,000. Not we have to subtract from actual vendor invoice. Best practice is reversing the document which is entered incorrectly. Understood. ठीक है, अब देखते हैं उसको. अब रिवर्स करने के भी दो तरीके हो सकते हैं ना. एक तो मैंने आपको बताया FB08 which will reverse this document automatically. Second way could be you are putting the reversal entry manually. वो भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, यू डोंट नीड टू डू. बट अगर आपको उसको करना है तो आपको डेबिट क्रेडिट मैनुअली एंटर करना होगा. वो मैं आपको दिखा देता हूँ. पहले एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं. FB60. Suppose I say I need to enter 12,000 and by mistake I'm entering 1,200. ठीक है, मैंने इनवॉइस एंटर कर दी है. तो ये मेरा डॉक्यूमेंट, मेरे को ना इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं. वेट.
ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आ गया मेरे पास। पहले आज का डेटा कर लेते हैं खाली। ठीक है, मेरा एक डॉक्यूमेंट ओपन है, वो है 1200 वाला, जो मैंने गलत एंटर कर दिया। इंस्टेड ऑफ 12,000 आई हैव एंटर 1200। तो डॉक्यूमेंट नंबर इज 1008। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब मैं इसकी एंट्री देखता हूँ कि एंट्री क्या आ रही है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। या तो मैं इसकी मैनुअल एंट्री रिवर्सल डालूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। F-02 करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपेंस को डेबिट की जगह क्रेडिट कर देता हूँ। अमाउंट ले लेता हूँ सेम अमाउंट, और 31 की जगह 21 कर देता हूँ, क्योंकि 31 मेरा वेंडर के लिए क्रेडिट होता है, तो मैं इसको डेबिट कर देता हूँ। अब मैं सिमुलेट करके दिखाता हूँ। अब मुझे बताइए एंट्री रिवर्सल है कि नहीं। ये मेरी लेफ्ट साइड में मैंने इन्वॉइस डाला, राइट साइड में रिवर्सल कर रहा हूँ। ये रिवर्सल हो रही है नहीं हो रही? ये तो हो रहा है। हो रहा है ना, मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब वेंडर रिपोर्ट में जाते हैं दोबारा। अभी आपके पास एक लाइन आइटम ओपन थी, अब दो हो गई। हम्म, एक माइनस का एक प्लस का है, इसका मतलब ये रिवर्सल हो गई है। हम्म, इम्पैक्ट रिवर्स हुआ है, बट एंट्री रिवर्स नहीं हुई है। एंट्री अभी भी ओपन खड़ी है। करेक्ट। मतलब ठीक है, आपने रिवर्सल इम्पैक्ट तो रिवर्स कर दिया। अब आप नई एंट्री डाल लो 12,000 की, ठीक है, बट इसको क्लियर भी तो करना होगा। तो उसके लिए मैनुअल ट्रांजैक्शन कोड है फिर F-44। तो मेरे दोनों डॉक्यूमेंट नंबर है 1008 एंड 1009। ठीक है, ओपन आइटम। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे ये क्लियर हो गए। ठीक है, मेरे ये डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए 1200 वाले। क्या क्लियर क्यों नहीं हुए? एक सेकेंड। अच्छा, अभी पोस्ट नहीं हुआ यहाँ पे, पोस्ट कर देते। ठीक है, पोस्ट हो गया 4 एंडिंग विथ 3। रिवर्स सेव। अब देखो 4 एंडिंग विथ 3 आ गया मेरे, ये रिवर्स हो गए। रिवर्स तो हो ही चुका था, बट अब ये क्लियर भी हो गया। हम्म, बट आपको मैनुअल एंट्री अगर नहीं डालनी, ये डेबिट क्रेडिट मुझे नहीं डिसाइड करना कि क्या होगा। सिस्टम डिसाइड करे कि क्या डेबिट होगा, क्रैक क्या क्रेडिट होगा। और मुझे उसको मैनुअली रिवर्स भी नहीं करना जैसे अभी हमने किया है। तो उसके लिए मैं दोबारा एक इनवॉइस एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ कि इंस्टेड ऑफ 30,000, लेट्स से 15,000 की नहीं, 27,000 की जगह 2700 का इनवॉइस आई एम पोस्टिंग बाय मिस्टेकनली। ठीक है, सेव इट। नाउ वेंडर रिपोर्ट में आते हैं। ठीक है, अब मेरा फिर एक डॉक्यूमेंट ओपन है 2700 वाला। ठीक है, या तो मैं दोबारा मैनुअल एंट्री डालूं, बट वो हमने देख लिया। नाउ वी विल सी हाउ टू रिवर्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली, एंड सिस्टम विल क्लियर ऑल्सो ऑटोमेटिकली। उसके लिए वी हैव अ ट्रांजेक्शन कोड FB08। यहाँ पे एंटर द डॉक्यूमेंट नंबर। क्या डॉक्यूमेंट नंबर है? 1010 कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, रिवर्सल रीजन 01। 01 का मतलब है करंट पीरियड। जो आपने करंट पीरियड में एंट्री करी है उसको रिवर्स कर रहे हो तो 01। अगर जो एंट्री आपने पिछले पीरियड की थी, क्लोज हो गया पीरियड, तो 02। इसका कोई इतना फर्क नहीं है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग डेट की जो मैं रिवर्स कर रहा हूँ उसकी पोस्टिंग डेट क्या होगी?
ठीक है, आपने बस ये इंफॉर्मेशन डालनी है। यू डोंट नीड टू डिसाइड व्हाट वुड बी माई डेबिट, व्हाट वुड बी माई क्रेडिट, एंड सिस्टम विल क्लियर ऑल्सो द डॉक्यूमेंट विच इज ओपन। जो हमने पिछला सिनेरियो देखा था उसमें क्लियर नहीं किया था कुछ भी, मैंने एंट्री डाली थी। देन वी नीडेड टू क्लियर मैनुअली थ्रू F-44। इस केस में FB08 के केस में सिस्टम विल रिवर्स द डॉक्यूमेंट एंड क्लियर ऑल्सो। नाउ लेट्स सेव इट। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर आया 1011। But how come we have not selected anything? We have not given any vendor details, nothing. अच्छा, we have given the document number. डॉक्यूमेंट नंबर दिए, डॉक्यूमेंट नंबर से उसने सब कुछ पिक कर लिया अपने आप। Okay, 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 okay. ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखना, ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर है, एक और डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, वो भी ग्रीन आएगा। रिफ्रेश, देखिए ये मेरा 10 ये रहा, 11 ये रहा, 2700 माइनस 2700 प्लस। रिवर्सल हो गया, क्लियरिंग हो गया, आपको और कुछ नहीं करना पड़ा। बट जो हमने पिछला सिनेरियो देखा था उसमें आपने पहले एंट्री डाली, फिर उसको क्लियर किया। बट इफ यू आर रनिंग FB08 टू रिवर्स एनी डॉक्यूमेंट, सिस्टम विल रिवर्स एंड क्लियर ऑल्सो। No posting is required and no selection is नो required. Nothing is. पोस्टिंग, नो वेंडर, नो GL, कुछ भी डिसाइड नहीं करना, बिकॉज सिस्टम इज टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट विच यू आर एंटरिंग ऑन द स्क्रीन। क्लियर है? Yes. यस सर, सिस्टम अलाउ करेगा अगर फ्यूचर डेट में अगर हम इसको रिवर्स करें तो? हाँ, पीरियड ओपन होना चाहिए आपका। अच्छा, पीरियड ओपन होना चाहिए, और जैसी 3 तारीख आएगी सिस्टम अपने आप दिखा देगा या ऑलरेडी पोस्ट कर देगा? नहीं नहीं, अभी आप पोस्ट करोगे अभी पोस्ट कर देगा वो तो। नहीं, जैसे फिर रिपोर्ट में भी दिखाएगा कि हमने इसको फ्यूचर डेट में इसको रिवर्स किया है। रिपोर्ट में तो आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिखाएगा। सपोज आपने यहाँ पे डेट डाली है आज की, तो हाँ वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पोस्टिंग डेट है। पोस्टिंग डेट आपने लिए कल की, वो भी करके देख लेते हैं एक बार आपके सामने। हाँ। एक FB60 करते हैं आज की डेट में। हम्म, ठीक है, अभी इसको डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना है। FB08, हम्म, अब मैंने लेता हूँ 12 नंबर। यहाँ पे हम लेते हैं कल की डेट ले लेते हैं, या एक आध दिन बाद की डेट ले लेते हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करेगा. नहीं नहीं, करना चाहिए। करेगा करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पोस्ट हो गया। हाँ। अब हम देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें दिख रहा है आज की डेट में। हम्म, ये मेरा 1013 है जो रिवर्सल डॉक्यूमेंट जो मैंने फ्यूचर डेट में पोस्ट किया है, डन। और मैं डेटा देख रहा हूँ आज तक का। तो 1013 मेरे पास नहीं आ रहा, देखो। नहीं आ रहा ना? तो सर ठीक। अगर इस टाइम इन फ्यूचर टाइम इन रियल टाइम में अगर हम उस डॉक्यूमेंट की पेमेंट करना चाहें तो सिस्टम अलाउ करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक रिवर्स डॉक्यूमेंट पंच करा हुआ उसके अगेंस्ट में फ्यूचर डेट में, और नहीं आज नहीं, इसको नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी आप इस डॉक्यूमेंट को दिखाना देख सर, लो। अगर आज पेमेंट करना चाहें तो? नहीं नहीं, वो दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन आ गया। ग्रीन आ गया तो कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। अच्छा, ऑलरेडी उसने मतलब सिस्टम ने नो डीम्ड कर लिया कि वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। वो क्लियर हो गया। आपने पोस्टिंग डेट जो ली है क्लियरिंग हाँ। डॉक्यूमेंट की 1013 की, ओके वो फ्यूचर की ली है, बट उसको हम क्लियर कर चुके हैं इस वाले डॉक्यूमेंट को। ओके ओके ओके। तो अगर ये रेड होता तो मैं फिर भी कहता कि हमें टेस्ट करना है, बट यहाँ पे ग्रीन है। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस तो डॉक्यूमेंट। सर इसका एक बार पीरियड चेंज करना, 7 तारीख तक करना, तो सिस्टम दिखाएगा ना फिर तो डेट। हाँ हाँ, इसको हम 7 तारीख करते हैं। सर यूजर्स ना बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं कहा भी पूछ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये आ गया आपके पास डॉक्यूमेंट। ठीक है। ओके ओके। मतलब इन रियल टाइम सिस्टम ऑलरेडी, अगर सर मैनुअल, अगर सपोज अगर ये एंट्री मैंने रिवर्सल वाली अगर मैनुअल से करी होती तो ये मेरा रेड होता, क्योंकि फिर मुझे F-44 से जाके उसको मैं वो रिकंसाइल करना पड़ता। अगर हाँ। उस टाइम मीनवाइल अगर मैं उसकी उस इनवॉइस की एंट्री करना चाहता पेमेंट, तो सिस्टम अलाउ करता मुझे? उस टाइम तो रेड होता वो। हाँ, तो करता हूँ, जब तक आपका ग्रीन नहीं है तब तक सिस्टम अलाउ करेगा उसकी तो पेमेंट सर करने कुछ की। मोटिव नहीं हुआ ना कि फ्यूचर में मतलब हमको यूजर को मना ही करना पड़ेगा अगर आप
करना चाहोगे तो आपको रिवर्सल वाले FB08 से ही करना पड़ेगा अगर आप मैंने सिस्टम आपको खाली प्रोसेस बताया। बेस्ट प्रैक्टिस FB08 ट्रांजेक्शन कोड है, जो रन करना चाहिए उसी टाइम उसको रिवर्स कर देगा, उसी टाइम उसको क्लियर कर देगा। वो तो ठीक है सर, अगर सपोज यूजर मेरे से पूछता है, अगर मैं ही पूछता हूँ कि अगर मैं इसकी रिवर्सल एंट्री मैनुअली पोस्ट कर रहा हूँ 7 तारीख नहीं, को, आप मुझे बताओ, आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक है मैनुअल एंट्री और एक है हाँ। FB08। आप कौन सा प्रेफर करोगे यूज करना? वैसे तो मैं FB08 ही प्रेफर करूंगा जो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिवर्स करते हैं, बट सर यूजर क्या करते हैं, कभी कभी मैनुअली पोस्ट कर देते हैं। नहीं, नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। अगर उनको पता है ना FB08 ट्रांजेक्शन कोड है हमारे पास रिवर्स करने के लिए, कोई भी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मैनुअल काम नहीं करेगा। ठीक है सर, मैं तो एक सिनेरियो पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आप सपोज मैनुअली रिवर्स कर दूं उसको, तो मेरे को सिस्टम उसको अलाउ करेगा करंट डेट में इसकी एंट्री पेमेंट करने सर, को? देखो आपने रिवर्सल एंट्री डाली है, क्लियर नहीं मैनुअली, किया। हाँ मैनुअली। जब तक क्लियर नहीं करोगे आप कुछ भी करो उस डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, मतलब करेगा, हमें सिस्टम अलाउ हाँ कर हाँ, देगा। आपने सिस्टम को कैसे समझ आएगा कि ये इसी की रिवर्सल है? सिस्टम को लग रहा है कि अपने क्रेडिट मेमो डाल दिया बस। ओके, तो फिर मुझको फिर F-54 से जाकर मैनुअल रिकंसाइल करना पड़ेगा उसमें। -44। ओके, ठीक है। हाँ, उसको मैनुअली क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, एक बार सिनेरियो रन करके देखता हूँ मैं ये वाला। हाँ, ये कर लेना। अब आते हैं अगला ट्रांजेक्शन कोड विच इज लिटिल मोर कंफ्यूजिंग, FBRA। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला इनवॉइस, उसको मैंने रिवर्स किया FB08 से, बट मुझे बाद में रियलाइज हो गया मेरे को इसको रिवर्स करना नहीं था। मैंने गलती से इस वाले डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर दिया, मतलब इसकी जगह मेरे को किसी और को करना था, बट बाई मिस्टेक मैंने इसको रिवर्स कर दिया। तो मुझे उस रिवर्सल डॉक्यूमेंट को क्लियर करना है ताकि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस ओपन हो जाए। मैं पहले एक्सेल में समझाता हूँ। वेंडर इनवॉइस, यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट नंबर, अमाउंट। डॉक्यूमेंट नंबर सपोज ये आया आपके पास, अमाउंट आया सपोज 4000 का, एंड आपने इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्सल डॉक्यूमेंट नंबर आया सपोज ये वाला, ये आपने रिवर्स कर दिया। और जब आपने रिवर्स किया तो क्लियर भी हो गया, तो उसका इम्पैक्ट हो गया 0। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है आपको जो हमने किया। जी। अब मैं कह रहा हूँ बाय मिस्टेक मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, बट मुझे इसको रिवर्स करना नहीं था, इस वाले डॉक्यूमेंट को। अब इसका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है ये वाला, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक नया ट्रांजेक्शन कोड है FBRA। आई विल रिवर्स दिस डॉक्यूमेंट, मतलब मैं रिवर्सल डॉक्यूमेंट को भी रिवर्स कर रहा हूँ। मतलब मुझे अगर इस वाले में मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकता, FBRA में आई नीड टू एंटर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। मेरा रिवर्सल डॉक्यूमेंट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, तो आई विल एंटर दिस डॉक्यूमेंट नंबर टू रिवर्स दिस रिवर्सल। फिर उस केस में क्या होगा, ये मेरा हट जाएगा और वापस मेरा इम्पैक्ट आ जाएगा 4000 का ओपन वेंडर रिपोर्ट में। तो अभी मैं इसे क्यों ना करूँ, ये FBRA क्यों आया? तो सेम थिंग एक बार ऑन करिए ना सर। ठीक है, मैं वही FB08 में जाके मैं वही वाला डॉक्यूमेंट दूंगा एंडिंग विथ 3। नहीं दे पाओगे। कोशिश करिए, होगा? एफ बी क्योंकि जीरो FB08 में यू नीड टू एंटर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर। तो रिवर्स डॉक्यूमेंट नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, FB08 से रिवर्स डॉक्यूमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते, उसके लिए वी हैव अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन कोड FBRA। और ओके इस ओके। वाले ट्रांजेक्शन कोड में FBRA में यू कैन नॉट एंटर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर। देखो मैं आपको टी कोड में भी दिखाता हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर, ये मेरा FB08 है, यहाँ पे इट इज आस्किंग डॉक्यूमेंट नंबर, इट इज नॉट आस्किंग रिवर्सल और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। बट जब आप रन करोगे FBRA, इट विल आस्क यू क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। एक सिनेरियो रन करें। हाँ, पूरा पूरा रन करेंगे। पहले मैं एक्सेल में आपको समझाता हूँ बिल्कुल कि क्या क्या बिल्कुल। समझ आ रहा है, उस हिसाब से मैं आपको, क्योंकि FBRA में भी दो सिनेरियो हैं। मैंने अभी आपको बहुत इजी वाला भी बताया, सेकंड वाला भी बताऊंगा, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके। पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने ओरिजिनल इनवॉइस डाला 4000 का, बाय मिस्टेक मुझे लगा कि यार मेरे को ये रिवर्स करना है, तो आई हैव रिवर्स FB08 से। देन लेटर ऑन आई गोट टू नो कि ये डॉक्यूमेंट मैंने गलती से रिवर्स कर दिया। Now I need to run FBRA to reverse my reverse document, or maybe you can say FBRA to reverse my clearing document number, this one.
ठीक है, जैसे ही मैं FBRA से इसको हटाऊंगा, क्लियर करूंगा, सिस्टम विल क्लियर दिस डॉक्यूमेंट विच इज क्लियरिंग डॉक्यूमेंट, और मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट वापस ओपन आ जाएगा रेड में, जो रिपोर्ट पे रेड आता है ना वैसे आ जाएगा। फिर मैं अपने पुरानी स्टेज में आ जाऊंगा जहां पे मैंने खाली इनवॉइस डाला है और कुछ नहीं किया। क्लियर? यस। यस सर। सबसे एक बार मैं पूछ लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। संतोष जी, आपको क्लियर है? हाँ जी सर, समझ क्या मैं। हम सागर? हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स ऑलरेडी रिवर्स डॉक्यूमेंट को। हाँ हाँ हाँ, सर सागर? एक डाउट है सर, जैसे जब हम हाँ FVRA रन करेंगे तो उसमें हम FV08 वाला जो मेरा रिवर्सल वाला डॉक्यूमेंट नंबर है वो डालेंगे ना, हाँ हाँ हाँ। और फिर उसको रिवर्स करेंगे, फिर मेरी बाद में मेरी ये वाली एंट्री आ जाएगी जो मेरी वेंडर इनवॉइस में पड़ी थी, जो मेरी ओरिजिनल एंट्री थी वो रह जाएगी मेरी, वो रह जाएगी। उसको ठीक मैं है, फिर पेमेंट करूंगा, मतलब करनी है तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सुरेंद्र? सर मेरे को क्वेश्चन है, बट मैं पहले सिनेरियो रन करूंगा, उसके बाद पूछूंगा आपसे। चलो ठीक है सर। चंद्रशेखर, इज इट क्लियर? Yes, sir. So, चलो ठीक है। but we need to use ABRA, sir. जब भी आपको रिवर्सल डॉक्यूमेंट को या क्लियरिंग डॉक्यूमेंट को, Clearing कर okay, okay, yeah. नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड चंद्रशेखर, जब भी आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना है, सपोज आपने पेमेंट भी कर दी एक डॉक्यूमेंट की, मैं अभी FB08 को हटा देता हूँ, Okay, एक आपने पेमेंट करी, ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट नंबर आया ये, okay. ठीक है, मैंने पेमेंट की एंट्री डाल दी, बट मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को पेमेंट की एंट्री अभी नहीं डालनी थी, देन आई विल रन FBRA फॉर दिस क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, और उसको मैं रिवर्स कर दूंगा पेमेंट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट को, तो ये मेरी हट जाएगी, वापस मेरा इनवॉइस ओपन हो जाएगा। Okay. मतलब व्हेन यू नीड टू, ये याद रखना, व्हेन यू नीड टू रिवर्स द क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, तब आपको यूज करना है FBRA। व्हेन यू नीड टू रिवर्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तब आपको यूज करना है FB08। 08, yeah, reverse करने, okay. ठीक है, अब इसको सिनेरियो रन करते हैं, पहले जरा वेंडर की रिपोर्ट को ना थोड़ा क्लीन कर लेते ताकि ये सिनेरियो समझ आ जाए। कुछ ओपन है पहले देख लेते हैं, आज की डेट में देख लेते हैं क्या ओपन है। ठीक है, कुछ भी ओपन नहीं है, एक एक करके एंट्री डालते हैं पहले। FB60 करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला 8000 का अमाउंट। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, उसको देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है 8000 का। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ कि मुझे इसको रिवर्स करना है, तो देन आई विल बी यूजिंग FB08 रिवर्स करने के लिए। 1014। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया। कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंट? 8000, yeah. ये आ गया। इसका नया डॉक्यूमेंट नंबर है 1015, जो मेरा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, इसको यहाँ पे भी एंटर कर लेते हैं। वेट, ये मेरा डॉक्यूमेंट है 1014, ये मेरा है 8000 का, ये मेरा है 1015, ये है -8000 का। ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसको उठा दे। जी। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को ये डॉक्यूमेंट ओपन करना है ओरिजिनल वाला, उसके लिए मुझे FBRA ट्रांजेक्शन कोड यूज करना पड़ेगा। आई नीड टू एंटर रिवर्सल डॉक्यूमेंट नंबर, और यू कैन से क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। तो FBRA ट्रांजेक्शन कोड रन करते हैं। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट नंबर डाला क्लियरिंग का, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर डालूंगा तो सिस्टम मुझे एरर दे देगा, ये आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है, यू नीड टू एंटर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है। सर उससे नाउ, पहले, इससे पहले हाँ, वही FB08 में जाके हम्म, जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट डालिए, वो भी डाल के दिखाते हैं। ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है ना सर? हाँ, 1015 इज योर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ से आप देख सकते परफेक्ट।
अब मैं इसको एंटर करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट तो मेरा रिवर्सल डॉक्यूमेंट है। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट का रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है FB08 में। जो रिवर्स हुआ है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते यूजिंग FB08। हाँ करेक्ट, उसके लिए FBRA ट्रांजेक्शन कोड यू नीड टू रन। मैं सोच रहा था कि सिस्टम एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अब जाते हैं FBRA में। यहाँ पे मैंने किया। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव और पोस्ट, यू कैन से। मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ओनली रीसेट और एक आ रहा है रीसेट एंड रिवर्स। मतलब पहले कौन सा देखना चाहेंगे आप? ओनली रिसेट। ये रीसेट। ओनली रीसेट। ओनली रीसेट एक्सेल में बताता हूँ। जब मैं इसको कर रहा हूँ FBRA रीसेट, तब आपका ये वाला डॉक्यूमेंट ये वाला डॉक्यूमेंट दोनों ओपन रहेंगे। ठीक है, तो आपको एंट्री ऐसे दिखेगी, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। इम्पैक्ट रिपोर्ट में 0 दिख रहा है, बट एंट्री दोनों ओपन दिखेंगी अगर मैं खाली रीसेट करूंगा। फिर एफडेस 44 में जाकर उसको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ फिर एफ डैश, नहीं 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 नहीं, क्लियर करना ही नहीं ना आपको। जब आपको इसको ओपन करना है तो फिर क्लियर इसको होना, फिर तो आपको इसकी पेमेंट करनी है। ये आपका ओपन खड़ा रहेगा माइनस, एक तरीके से वो गलत है। करेक्ट। बट हम रीसेट करेंगे तो ये दोनों डॉक्यूमेंट मेरे ओपन आ जाएंगे। अभी मेरे को देखोगे तो 14 और मेरा 15 दोनों जो है ग्रीन है, ये दोनों रेड हो जाएंगे। पहले रीसेट करते हैं। ठीक है, मैंने रीसेट कर दिया। 1015 क्लियरिंग डॉक्यूमेंट वो रीसेट हो गया। अब मैं रिपोर्ट को रिफ्रेश करता हूँ। मेरे दोनों डॉक्यूमेंट ओपन हो गए, 10 और 14 दोनों। क्योंकि ये मेरा माइनस प्लस ये 0 हो रहा है, बट ये ओपन है, रिपोर्ट में मेरे को दिख रहे हैं दोनों। इम्पैक्ट 0 ही आ रहा है। ये तो था आपको अगर आप जब रीसेट कर रहे हो। जब आप करोगे रीसेट एंड रिवर्स, तब ये वाला डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका इम्पैक्ट जो रह जाएगा वो रह जाएगा। इसको रखता हूँ यहाँ पे ऐसे। फिर आपका 8000 का इनवॉइस ओपन रहेगा। अब वो सिनेरियो देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट भी एंटर करता हूँ FB60 में। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं? जो डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया उसको हमने अ, उसको हमने रिवर्स किए थ्रू FBRA, राइट? लेकिन हाँ हमें बाद में लगा कि यार वो रिवर्स करने का था, तो हमने गलत में उसको रिवर्स कर दिए। कांट वी रिवर्स बैक टू द रिवर्स एंट्री अगेन? नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि इस वाले डॉक्यूमेंट को मुझे रिवर्स नहीं करना था, मतलब रिवर्सल को रिवर्सल नहीं करना था। नहीं करना था, मैंने कर दिया। हाँ हाँ, फिर उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना है FB08 से, वो है 1015। ओके ओके वो आप दूसरे सिनेरियो में समझोगे आप। ओके ठीक ओके ओके। है? मैं आया यहाँ पे, मैंने 7000 का एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया। ठीक है, अब मैं पहले इसको FB08 कर रहा हूँ। यहाँ पे भी दिखाया था 7000 की एक एंट्री आ जाएगी। ठीक है, 7000 की एंट्री आ गई। डॉक्यूमेंट नंबर आया है 1016, ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर है। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो मेरा 7000 का रिवर्सल आ जाएगा। रिवर्स हो गया ये। अब क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है 1017। नाउ आई विल रन FBRA। अब मैं रीसेट एंड रिवर्स दोनों करूंगा। अब इस केस में क्या होगा, जो मेरा 1017 वाला डॉक्यूमेंट है वो क्लियर हो जाएगा और ये मेरा ओपन हो जाएगा। 1016 है, और ये है मेरा 7000 का। ठीक है, इम्पैक्ट 7000 का दिख जाएगा आप। रीसेट एंड रिवर्स, पोस्टिंग डेट। ठीक है, ये मेरा रीसेट हो गया और मेरा नया डॉक्यूमेंट आ गया 1018, जो रिवर्सल किया है जिसने। अब हम रिफ्रेश दोबारा करते हैं, इन दोनों डॉक्यूमेंट को देखना। 10, इनको मैं फिल्टर कर देता हूँ। नहीं नहीं, फिल्टर नहीं करता,
क्योंकि 1018 वाला डॉक्यूमेंट भी आएगा। तो 1016 1017, इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा। ये मेरा देखो, ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो गया मेरा KR का 1016, और 1017 एंड 1018 ये मेरा रिवर्सल है, रिवर्सल का। तो अब मेरे पास खाली ओपन पड़ा है ये वाला डॉक्यूमेंट 7 ईयर वाला। अब आप कह रहे हो मुझे इसको रिवर्सल नहीं करना था, देन यू नीड टू टेक अगेन 1016 FB08 में। दोबारा ले लो, वो ओपन हो गया, दोबारा ले लो, अब रिवर्स कर दो, फिर रिवर्स हो गया। अब आ गया डॉक्यूमेंट नंबर 1019, फिर रिवर्स हो अच्छा। गया। हम्म, तो अब बताइए ये क्लियर है कि नहीं, FB08 और FBRA। सुरेंद्र से पहले पूछो, सुरेंद्र को कुछ क्वेरी थी। नहीं, सागर था शायद। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने रिवर्स का डॉक्यूमेंट को रिवर्स किया है, ठीक है। हम्म, अब हम्म, शुरुआत का रिवर्सल वाला जो स्टेप था उसमें तो मेरे वेंडर जो मेरा रिवर्सल वाला डॉक्यूमेंट है वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और जैसे हाँ, मैंने रिवर्स एंड रीसेट किया तो हम्म, दोनों मेरे क्लियर्ड हो गए। और प्लस मेरा जो मेन वेंडर इनवॉइस है वो मेरी पेंडिंग रह गई, वही मेरी ओपन हाँ, दिखाएगा, बाकी दोनों मेरे क्लियर्ड हो जाएंगे, यही था हाँ, सर। हाँ, हाँ, और उसकी मैं पेमेंट करूंगा। हाँ, और अगर सर मैं पोस्टिंग डेट में करूँ तो हो जाएगा, अगर मैं फ्यूचर डेट में करूँ ये चीज़? हाँ, हाँ, फ्यूचर डेट में भी होगी, जब तक पीरियड ओपन है आप फ्यूचर डेट में कर सकते हो। अच्छा, पीरियड ओपन नहीं है तो आप नहीं कर सकते, पीरियड ओपन है तो फ्यूचर डेट में कर सकते हो। कर सकते हैं, ठीक है। तो सुरेंद्र, आपका कोई क्वेरी? नहीं सर, मैं पहले सिनेरियो रन करूंगा उसके बाद। चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी क्लियर है ये जो हमने समझा, FB08 FBRA ट्रांजेक्शन कोड। यस सर ये जो 8000 का अभी आपका ये रेड ओपन है हमारा, ये कैसे हाँ, क्लियर करोगे? जो रिवर्स का आपने ओनली रीसेट किया था, हाँ, इसको इसको भी तो करो क्लियर, ये तभी समझ में आएगा। तो ये देखो F-44 करके इन दोनों को रिवर्स कर दो, अगर आपको लगता है ये मेरे को इन दोनों को रिवर्स करना है। अच्छा, मैन्युअली जाना पड़ेगा अपने को अभी? मैनुअली अगर डॉक्यूमेंट ओपन पड़े हैं दो, एक डेबिट और नहीं, क्रेडिट। ये एक चीज बताओ ना, जो आपने जो उसमें FBRA में दो ऑप्शन आ रहे थे, ओनली सेट और ओनली रीसेट एंड रिवर्स, उससे तो हाँ, मेरे को समझ में आ गया कि सिस्टम ने ऑटोमेटिक रिवर्स करके उसको क्लियर कर दिया। ओनली रीसेट में सिस्टम ने क्या किया, 8000 वाले को रिवर्स कर दिया और ये दोनों ओपन कर दिए उसने। हाँ, तो अब ये जो 8000 जो मेरा रिवर्सल था FB08 वाला, इसको तो क्लियर करवाओ पहले, ताकि मेरा वो 8000 ओपन रहे। नहीं नहीं, मैंने आपको दो सिनेरियो बताए। हम्म, आपको यूज 99% केस में रिवर्स और रीसेट ही करना है। हाँ अगर हाँ आप हाँ, पहला केस में करोगे तो आपको सिस्टम ऐसे कर देगा। अगर हम ओके, इसको रिवर्स करते हैं 1015 डॉक्यूमेंट को, जो मेरा रिवर्सल का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अब ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट तो है नहीं, अब ये नॉर्मल हाँ डॉक्यूमेंट है, हाँ, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। अब मेरे पास खाली ये वाला इनवॉइस नंबर हम्म, बचा, ये वाला। ओके। अगेन वहां जाके फिर करना पड़ेगा मुझे, मतलब ताकि वो एक तरह से एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको नहीं ओके, करना चाहिए। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस सेज दैट कि आपको रीसेट एंड रिवर्स यूज करना है। डन डन। ओके सर। सर ये वाला आपने क्या किया है जो एक लाइन आइटम आपने क्लियर कर दिए? व्हाट हमने डिड जो रिवर्सल वाला डॉक्यूमेंट था ना, जब हमने उसको रीसेट किया है BRA से, तो उसने उसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट बना दिया क्लियरिंग को। तो मेरा इनवॉइस को भी ओपन कर लिया और रिवर्सल डॉक्यूमेंट को भी ओपन खड़ा कर दिया उसने रिपोर्ट में। बराबर। अब ऐसा तो सिनेरियो होगा नहीं, अगर आपने रिवर्स किया है और उसको दोबारा रिवर्स कर रहे हो, तो वो वाला वो चीज आपको क्लियर तो करनी है। हाँ। तो उसके लिए मैंने FB08 चला दिया, रिवर्सल डॉक्यूमेंट का जो नंबर था 1015 वाला, उसको रिवर्स कर दिया। नाउ माई इम्पैक्ट इज ओनली पेंडिंग विद इनवॉइस 8000, की मुझे 8000 की पेमेंट करनी है। हम्म, ठीक है, क्लियर है। ओके सर। अब यस मुझे सर। बताइए, एक क्वेरी है, आप स्क्रीन पे जो रिपोर्ट देख रहे हैं, मेरे पास रेड में एक ही आइटम है 8000 की, बट मुझे बता रहा है नीचे 17800 की पेमेंट करनी है मुझे वेंडर को। ऐसा क्यों? टोटल तो वो दिखा रहा है 17800 की पेमेंट करनी है, बट मेरी रिपोर्ट में मुझे दिख रहा है 8000 की पेमेंट ओपन है खाली। तो इसके लिए बैक जाइए। यहाँ पे हमने जो डेट रन करी है वो हमने आज की करी है। तो लाइन आइटम जो दिखा रहा है आज की दिखा रहा है, बट टोटल जो दिखा रहा है वो पूरा दिखा रहा है। तो इसको करते हैं ओपन आइटम आज तक का। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे और भी आइटम जो ओपन है, जो पहले की पोस्टिंग है।
बट हमने आज की पोस्टिंग चेक कर रहे थे ताकि आपको समझ आ जाए, इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए हम खाली दो का ही चेक कर रहे थे। इसलिए वो ऑल आज आइटम, ऑल आइटम करके अगर हम डेट ना दें, हाँ, ऑल आइटम करके आप दिखा रहे हो कि कितना मेरा ओपन है। नहीं ऑल आइटम करके हम डेट ना दें, विल नॉट गिव द डेट्स, इट विल गिव एवरीथिंग नो। हाँ, डेट नहीं दोगे पर डेट बुक सिस्टम पुनीत पुनीत सर, लेकिन आप जो ट्रांजेक्शन पंच कर रहे थे वो तो करंट डेट में कर रहे थे, बट वो जो उसका अमाउंट दिखाना चाहिए वो तो फिर करंट डेट का ही दिखाना चाहिए ना, वो पुराना डेट का क्यों दिखा रहा है? बट वहाँ पे तो वो ओपन दिखा ही नहीं रहा, वहाँ पे तो उनको क्लोज ही दिखा रहा है, ओपन तो सिर्फ एक ही आइटम पड़ा हुआ है। हाँ, तो जैसे मेरा, सारा तो हमने आज ही क्लियर कर दिया। सर सारा आज क्लियर कर दिया, अब ये है मेरा सिर्फ 8,000 का पेमेंट पड़ी है, ये मेरी हाँ, करंट डेट का है ना सर? ये पेमेंट नहीं है, ये इनवॉइस है अभी आपका। ये इनवॉइस, हाँ ये मेरी करंट डेट की है। तो हाँ, करंट करंट। डेट का ये जो मेरा अमाउंट है, ये मेरा करंट डेट का मेरा 8,000 फिल होना चाहिए, बट ये 7,000, ये 17,800 कुछ, ये तो पुराना डेट को भी कंसिडर कर रहा है, जैसे आप ओपन आइटम देख रहे हो, तो सर ऐसा क्यों चल रहा है ये सिनेरियो? टोटल आपको दिखा रहा है कि इस वाली रिपोर्ट में कि मेरे पास ये 17,000 का है। बट आज की डेट में आपकी कौन कौन सी एंट्रीज आई हैं, वो है ये वाली, हम्म। ये वाली। ये डेट सर अगर यहाँ पे पोस्टिंग डेट लगाओगे, ये मेरी पोस्टिंग डेट, पेमेंट डेट, पोस्टिंग पीरियड चला गया। पोस्टिंग डेट है नहीं लगता है। नहीं सर, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि जैसे ये अभी करंट पोस्टिंग डेट मेरी करंट डेट का है, ठीक है, हाँ, उसमें मेरा जो मेरी पेंडिंग है सिर्फ 8,000 की है, तो यहाँ पे हाँ। मेरा 8,000 दिखाना चाहिए था, जो 8,000, नहीं, बट नहीं, नहीं, इसने कंसिडर। सर ये तो उसका लेजर बैलेंस दिखा रहा है ना ये मेरे उसका पास। लेजर बैलेंस दिखा रहा है टोटल। और जब मैं रिपोर्ट रन हाँ। कर रहा हूँ, यहाँ पे हम्म पोस्टिंग डेट जो ऑल आइटम, वो मेरे को हम्म दिखा रहा है कि आज मैंने कितनी पोस्टिंग करी लाइन बाय लाइन। हम्म आज कितनी पोस्टिंग हुई है, कितनी रिवर्सल हुई है, कितनी क्लियर हुई है, वो दिखा रहा है डेटा मुझे। और उसका सर टोटल दिखा रहा है। वो तो दिखा रहा है, बट सर ये तो यहाँ तो 8,000 होना चाहिए था ना, मतलब वो तो क्लियर कर चुका ना, मेन बैलेंस तो मेरा 8,000, 8,000 ही पड़ा है ना। सर एक नहीं सेकंड, इसको सर इसको एक सेकंड, सागर, इसको समझ, सागर, हाँ बताओ, हाँ। सागर, जब हम लेजर बैलेंस चेक करते हैं और फ्रोमो टू में डेट डालते हैं ना, हाँ। तो फ्रोमो टू में डेट डालते हैं तो हमारे को वो करंट पीरियड का डेटा दिखाता है, बट ओपनिंग बैलेंस में फिर वो दिखा देता है उसका प्रीवियस कितना है, फिर टोटल करके दिखाता है ना, वही चीज है, हम्म। ये नहीं, वही नहीं, नहीं। नहीं, 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 एक सेकंड, एक सेकंड। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमने एक डॉक्यूमेंट को आज एंटर किया था और फ्यूचर हम्म डेट उसके के लिए। बाद 7 को किया था। हम्म तो उसका इम्पैक्ट आज तो दिखेगा नहीं। हम्म तो अगर मैं आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आज का डेटा सारा दिख रहा है। यहाँ पे आप हम्म इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि एक डॉक्यूमेंट को हमने रिवर्स किया था 7 तारीख को। यहाँ हम्म पे पोस्टिंग डेट जो आ रही है सारी 2 आ रही है। हम्म उसका इम्पैक्ट आपको 17,800 दिख रहा है। बिकॉज हम्म अगर मैं उस डेट को भी लेके आता हूँ, अभी देखना एक मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा आपको। हाँ सर, वही 8,000 वाला सीन ही मेरे को समझ थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन एक लग रहा एक है। सेकंड, एक सेकंड। वो इसलिए क्योंकि ये जो एक डॉक्यूमेंट था ये वाला, हम्म। इसको टोटल करो और इसको टोटल करो 8,000 को, कितना हो जाएगा? 17,800। अच्छा। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हमने 7 तारीख को रिवर्स किया था ना, बट उसकी हम्म एंट्री तो आज थी हमारे पास। हम्म एंट्री तो थी हमारे पास, बट उसको रिवर्स तो कर ही दिया हमने। बट सर फिर सिस्टम को सिर्फ 8,000 ही, अब तो ये आपने 2 तारीख ली, बट करेंटली तो मेरे को यहाँ पे नहीं, फिर 7 वाली एंट्रीज भी दिखानी चाहिए ना, उसके लिए वो सत्रह दिखाएगा। हजार को मैं ऐड डेट ही करना। नहीं, मैंने डेट ही नहीं डाली। मैं डेट ही आज तक आज आज की डाल रहा हूँ खाली। हम्म, तो आज की डेट का सिर्फ 8,000 देना चाहिए सिस्टम को, मेरा तो नहीं, ये वो है। नहीं, अगर वो 8,000 देगा फिर आपको, अगर मेरे ये 9,098 वाला तो मैंने रिवर्स कर दिया था, फिर ये ओपन क्यों हम्म, दिखा रहा है? नहीं ये तो सर क्लोज ही है यहाँ पे, ओपन तो यहाँ सिर्फ पे मेरा 8,000 ही दिखा रहा है, नहीं, ये वाला ओपन वाला। 8,000 दिखा रहा है। अगर आप कह रहे हो कि मेरे को यहाँ पे 8,000 दिखाना चाहिए, तो हम्म इसको इसको कैलकुलेशन करूंगा तभी तो दिखाएगा मेरा 8,000। अभी तो इसको इसको प्लस कर दिया उसने, हम्म इसको हम्म इसको। तो हम्म ये मेरा रिवर्सल तो 7 तारीख को कर रखी है आपने। आप लेजर देख रहे हो 2 तारीख का। हम्म क्योंकि लेजर जो आ रहा है पोस्टिंग डेट से आ रहा है ना, ये देखो पोस्टिंग डेट से आ रहा है। हम्म जब मैं इसको 7 तारीख कर दूंगा कि हाँ मेरे 7 तारीख को भी एक रिवर्सल था, तब हम्म, आपका एक लाइन आइटम ओपन है 8,000 की, और नीचे आपको 8,000 दिखाएगा। अच्छा। ये वाली लाइन आइटम आपने एक्सक्लूड कर दी ना अभी, साथ हम्म वाली, जो इसका 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 रिवर्सल है। हम्म जब इसको हटा ठीक दूंगा है। तो मेरा ये और ये प्लस हो जाएगा।
वो 17,800 हो गया। इसलिए फ्यूचर डेट में नहीं करते हैं, वो करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमेशा रिपोर्ट में कंफ्यूजन आएगी। वही सर, वो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, अगर तभी आप कहते हैं कि हाँ। एक कल तक का डेटा देखोगे, सर अगर डेट ना डाले तो बिल्कुल डेट मत डालिए, ऑल आइटम्स करिए और बिल्कुल हाँ डेट मत ऑल डालिए। आइटम करेंगे सब कुछ सही आएगा। आ गया, सारी चीजें आ गई आपके पास। ये आपके पास बैलेंस है। मतलब ये बैलेंस क्वांटिटी जो मेरी ओपन होगी उसका मेरा सम दे देगा हाँ वो। हाँ, उन सबका टोटल करके दे देगा। तभी फ्यूचर डेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। फ्यूचर डेट डालनी नहीं चाहिए। अच्छा। और वैसे तो कई जगहों पे यू वोंट बिलीव, ये वैलिडेशन लगी जाती है कि अगर आज सिस्टम कोई चला रहा है तो उसको एंट्री डेट, मतलब उसको पोस्टिंग डेट आज से कल की भी ना ले पाए, वो वैलिडेशन भी लगती है कि क्योंकि यूजर सर कैन। अभी तो एक ही एंट्री थी आपने करी, ऐसे हम्म, मेरा 8,000 वो रह गया तो अरे 17,000 हो गया, ऐसे कई सारी एंट्री होगी सर, सिस्टम तो पूरा मतलब फिर उसको कैलकुलेशन करना और क्या मेरा मतलब अभी एक डेट की ऐसे बहुत सारी डेट की आ जाएगी। अभी बिजनेस क्या कहता है कि हमारे को वैलिडेशन लगा के दो कि हम्म। पोस्टिंग डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन टुडेज डेट। ओके। ये वैलिडेशन होती है, वो भी हम समझेंगे वैलिडेशन जब वैलिडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके। और पहली बात, बिजनेस कह सकता है यूजर को अपने की फ्यूचर डेट में पोस्टिंग ना करो, बट ओके। उसकी उंगलियां नहीं रोक सकता। हम्म। उसकी उंगलियां रोकने के लिए वैलिडेशन हम लगाते हैं कि पोस्टिंग डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन टुडेज डेट। हम्म। सर जब ये भी तुम, वैलिडेशन जो होती है ये एबेपर या मतलब हम भी कर सकते हैं? हम ही करते हैं, 90% हम करते हैं। हम्म। 10% केस में हमें हेल्प लेनी पड़ती है अबैपर से। ओके, तो इसके लिए क्या कोडिंग होती है सर, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ये मतलब इसमें अबैप सिस्टम में होती है? अबैप मतलब हम नहीं करेंगे कोडिंग, हम हम्म। फंक्शनली लिखेंगे। ओके। अगर कोडिंग की जरूरत पड़ेगी हमें, तब हम अबैपर से हेल्प लेंगे। पेपर्स का। तो कोई ऐसा सिनेरियो भी कि मतलब हम स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी से ही वैलिडेशन बना दे सिस्टम में स्टैंडर्ड से मतलब? बनाते हैं, हम स्टैंडर्ड से बनाते हैं। ओके, अभी वो सर आप बताओगे ना? हाँ हाँ, वो तो आगे आएगा अभी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं।